Ideas, discussing their ideas with the convener IAC. And today is the opportunity for you to learn few tricks, learn few guidelines from the eminent speakers so that they can provide you some headway so that you can move in that direction. So I won't take much time because we have another program lined up. So I welcome the guest speakers to DOB College Jalandhar from the core of my heart. And I'm sure that this session is going to be very, very fruitful for our young students. Thank you all. Thank you IAC and thank you Department of Commerce. Thank you. Thank you so much, sir. So without a further ado, let's take you all to the journey of entrepreneurship skills, attitude and behavior development with our esteemed speaker of the day, Shri Siddharth Shankar Sharma ji. Welcome, sir. Good morning, everyone. First of all, thank you very much, sir, for inviting us here. So I am Siddharth. So belong to this place only. I belong to Jalandhar. So before starting my lecture, I just want you to go through my own profile, because whatever I am going to talk, I am going to talk with my own experience, not with some philosophy and all. So I was born in Hoshiarpur, so my education, entire thing was in Jalandhar only. So I started my career from Usha International, a company very famous for appliances and goods. It's a basically consumer durable company in 2000. So my journey with private sector started in 2000. I worked for Usha for 5 years, then shifted to financial sector, where I got exposure. So I started my journey in 2000 as a sales trainee with Usha, and in 2008 I was elevated to country head with insurance companies. So from 2000, and when I started my career, my qualification was simple graduation and a diploma in management. So during my course of my employment, I went number of courses. At one point, I left my job and went to IIMs for my specialization in strategic management. So I headed India for 10 years from 2008 to 2018. So I headed 3 companies in these 10 years. Incidentally, I met CM for one discussion on some financial matter. So during my discussion, he asked me, Siddharth, to join government, leave the private sector. You are based out of Bombay, Chandigarh आ जाएगा, तू भी पास, घर के भी पास हो जाएगा. और so how my journey with government started. So worked for 4 years with Punjab government. Now I'm working in same capacity with Haryana government. So I'm working on few initiatives of mine. You can say startups. I'm working 3 or 4 startups. One is the production of ammunition and arms. Sounds different, but goliyan or banduke. So I'm working on this company. But surprisingly, there is only one company in India who's making bullets other than government. Only one. So scope is huge. So this is one of my venture. It deals in the product sales. And other one, I'm working on a project in metaverse. So in the IT field, metaverse, I'm got a mandate from SGPC to work with them on Golden Temple on metaverse. So in one, we are working with one space marketplace, will provide platform to the artisans of India and will connect them to the buyers in the world. So these 3 ventures I'm working in India and 2 in overseas, one in Dubai and other one in Saudi Arabia, where I'm working closely with the royal families of both the countries, UAE and Saudi.
So, this is my brief background. So, just want you. Now, this will be an interactive session. Otherwise, if you are not going to talk, I will also not talk. So, whatever I am going to talk is purely based on my own experience. So, I am firm believer that if I can do it, so anyone can do it. So, how many of you want to go to abroad after your education? कोई नहीं बाहर जाना चाहता। सरप्राइजिंग डालो कि जलंधर रह के कोई ना जाना चाहे बाहर। नहीं, सीरियसली यार, I came across from Chandigarh just to guide you. So, अगर आप ही नहीं पूछोगे या बात ही नहीं करोगे तो मैं गाइड किसको करूंगा? फिर तो बस गवर्नमेंट पॉलिसीज 2-4 बता के मैं भी बैठ जाता हूँ जाके। वो तो इंटरनेट पे भी आप पढ़ सकते हो। मे भी स्वावलंबी भारत है ना, तो हेजिटेट कर रहा है। नहीं, प्लीज यार, क्योंकि मैं तभी आपको गाइड कर पाऊंगा एज पर योर ओन इंटरेस्ट। चलो मान लेते हैं कोई बाहर नहीं जाना चाहता, तो यहाँ पे जॉब कितने लोग करना चाहते हैं? वो तो हाथ खड़े कर दो जो जॉब करना चाहते हैं। सो अपना काम कौन करना चाहता है? सही, तो इट्स अ गुड ऑडियंस ज्यादा है। सो जो जॉब सीकर्स हैं उनको तो जॉब यहीं पे मिल जाएगी, आपके ही साथ वाले रख लेंगे। सो मुझे रख लेना भाई। कॉर्डलेस माइक है? नो प्रॉब्लम। सो जॉब सीकर होना और जॉब प्रोवाइडर होना दोनों में गलत कुछ नहीं है। नो वन कैन वर्क इन अकेले रह के काम कोई नहीं कर सकता। एवरीबडी नीड्स अ टीम। सो टीम कैन बी योर पार्टनर्स ऑल्सो, टीम कैन बी योर एम्प्लॉयज ऑल्सो। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द जॉब्स और वर्किंग अब्रॉड। बाहर जाके बंदा काम क्यों कर रहा है? हमारे यहाँ पे ट्रेंड इतना ज्यादा है कि +2 की नहीं तो बाहर। उसका मेन रीजन क्या है कि हमें ये लगता है कि बाहर मैं अगर $1 कमाऊंगा तो वो 80 रुपए यहां पे हो जाएंगे। बट हम अक्सर इस कैलकुलेशन में ये चीज काउंट नहीं करते कि $1 अगर मैं वहां कमाऊंगा तो मुझे वो $1 वहीं पे खर्च करना पड़ेगा, ना कि 80 रुपए इंडिया में। सो एक ब्रॉडर जो डिफरेंस आता है वो हमें सिर्फ ये है कि वो हमारा वो बंदा वहां गया हुआ है, वो तो बड़ा अच्छा जी पैसे कमा रहा है, इसलिए हमें भी बाहर जाना है। सो हमें ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले ये है कि आज की डेट में यू टेक एनी कंट्रीज डाटा, इंडिया इज परफॉर्मिंग 100 टाइम्स बेटर देन एनी अदर कंट्री। पंजाबियों का सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन आजकल क्या है बाहर जाने के लिए? कनाडा इज स्ट्रगलिंग विद एम्प्लॉयमेंट, दे आर स्ट्रगलिंग इवन विद हाउसिंग। उनके पास घर ही नहीं है लोगों को रहने के लिए। देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट इन उस कंट्रीज। आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर लीजिए, आप कनाडा की बात कर लीजिए, यूएस की बात कर लीजिए, यूके, यूरोप इज स्ट्रगलिंग विद देयर इकोनॉमीज। And India is the only country, the economy is growing. So काम वहां करने का लोग पहले यहां से इतने माइग्रेट क्यों हुए? क्योंकि they are the economies were growing rapidly. जहां पे काम का स्कोप था, आज बंदा जहाज से उतरा, चल कल काम पे। So वो सिस्टम अब इंडिया में आ रहा है। द वे गवर्नमेंट इज परफॉर्मिंग और जैसे गवर्नमेंट का विजन है, अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि 2047 तक इंडिया विल बी द वर्ल्ड्स नंबर 1 इकोनॉमी, वो 100% होगा। मैं कोई ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा, बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ फ्यू ऑफ द कमिटीज जो इस चीज को देख रही हैं। आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग।
नीति आयोग के जब वाइस चेयरमैन उन्होंने मुझे कहा कि सर अगर हमारी पॉपुलेशन 40% पॉपुलेशन काम करना शुरू कर दे, इंडिया विल बी 40 ट्रिलियन इकोनॉमी इन 3 years. 40 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड दैट टू इन 3 years. डबल देन यूएस. Yeah. सिर्फ 40% लोग काम करना शुरू कर दें. So when it comes to selecting your career, whether going for a job or going for a self-employment or entrepreneurship, उसके पीछे एक ही मोटिव रहता है कि पैसा कैसे कमाया जाए. So वही बात, जॉब करना या जॉब के लिए जाना जो है ये गलत बात बिल्कुल नहीं है. मैं खुद जॉब से ही आया हूं, अभी भी एक हद तक जॉब ही करता हूं. पर वो माइंडसेट जो है कि मुझे जॉब ही करनी है, जो जिस एटमॉस्फेयर से मैं आया था, आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ एजुकेशनिस्ट, लाइक माय फादर वाज आल्सो अ प्रोफेसर इन अ कॉलेज, रिटायर्ड एज अ प्रिंसिपल. सो उस समय अपॉर्चुनिटीज वर वेरी लिमिटेड. तब हमें ये ही सिखाया जाता था कि पढ़ लो तो नौकरी मिल जाएगी, बिकॉज उस समय एटमॉस्फेयर ऐसा था. नौकरी, कभी कोई ये कहता ही नहीं था कि अपना काम भी करो. पर आज का जो टाइम है, जिस समय में आप लोग अभी पढ़ रहे हो, इस समय जब मैं पढ़ता था तब तो ऑप्शंस ही वो थे, इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ. सो मैं भी इंजीनियरिंग करने के लिए गया था. पर आज की डेट में अपॉर्चुनिटीज का तो इतनी, आप जो चीज अच्छा कर सकते हो वो आपकी अपॉर्चुनिटी है. यहां पे के बाहर वो है ना कुलचे वाला है, दीनानाथ. इनकम टैक्स रेटेड एंड ही सरेंडर 3 crore रुपीज. 3 करोड़ रुपया इसने किया सरेंडर. सो काम छोटा या बड़ा की बात नहीं है, बात है कि क्या आपको अच्छा लगता है और क्या आप अच्छा कर सकते हो. वो अपॉर्चुनिटी आपको जॉब में भी मिल सकती है, वो अपॉर्चुनिटी आपको अपने काम में भी मिल सकती है. एंड नाउ कम्स अ रोल ऑफ स्किल, कि मेरे पास आज क्या स्किल है कि मैं अपना काम कर सकता हूं. अगर मेरे पास आज वो स्किल नहीं है तो मैं स्किल एक्वायर करने के लिए क्या कर सकता हूं. तो स्किल एक्वायर करने के लिए या तो मैं जॉब में जा सकता हूं कि मुझे 2-3 साल मैं काम करके देखूं और उसके बाद अपना काम करूं, या स्किल के अलावा कि हाँ मैं कोई ट्रेनिंग ऐसी ले लूं कि मैं वो ट्रेनिंग लेके ही कोई काम शुरू कर लूं. पर इन सब चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्किल और पैसा और पैशन. माइंडसेट. एग्जैक्टली, पैशन एंड योर माइंडसेट. स्किल भी आप एक्वायर कर सकते हो, पैसा भी आप ले सकते हो. पैशन आपका खुद का होगा, माइंडसेट आपका खुद का होगा, एंड द करेज टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप टू से कि हां मुझे ये काम करना है. So government of India has number of opportunities for entrepreneurship. आपको पता है कि इंडिया में इस समय कितनी स्टार्टअप कंपनीज रजिस्टर्ड हैं? It's more than 99,000. And India is the third largest hub of startups now. और ये ग्रोथ हमारी पिछले 5 सालों से ही है, क्योंकि उससे पहले तो कोई स्टार्टअप्स की बात ही नहीं करता था. और इन 99,000 में 3 मेरी भी हैं. सो इन 99,000 में से 109 are unicorns born and brought up in India. यूनिकॉर्न होता क्या है? $1 billion company. गुड.
सो 109 हमारे यूनिकॉर्न है और 99,000 से ज्यादा, शायद 1 लाख से ज्यादा हमारे पास स्टार्टअप्स हैं. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर क्लैरिटी इन योर माइंड कि आपने करना क्या है. डोंट गो विद द फ्लो कि ठीक है जी नौकरी मिल गई था, नौकरी चली गई, नहीं मिलूगी तो फिर देख लूंगी की करना है. इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर अ जॉब, बी क्लियर इन योर माइंड कि मुझे जॉब में जाना है और मुझे इस फील्ड में जॉब में जाना है. ये क्लैरिटीज मेरे टाइम पे नहीं थी. और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सर, जब मैंने जॉब में जाना था तो आई वॉज क्लियर इन माई माइंड कि मैं सेल्स में तो जाऊंगा ही नहीं. एंड आई स्टार्टेड माई करियर इन सेल्स एंड डिड वंडरफुल जॉब. सो ये वो चीज थी जो मैं पहले दिन इंटरव्यू में जाता, नहीं सेल्स जॉब से मैं तो नहीं जाना जी. From the day one in my sales career, I was throughout number one in India. ये वो फील्ड था जिसमें मैं सोच रहा था मुझे तो इसमें जाना ही नहीं है. And I was motivated by one of my very close relative कि you can do well in this field. और उन्हीं के कहने पे मैंने शुरू किया and there is no looking back. I was youngest product in charge while I was working with Usha. I started as trainee and elevated to regional product head. I was youngest in India to become the product head. और मैं तब तक IIM से नहीं आया था पढ़ के. और जो मेरी प्रोफेशनल जर्नी रही है उसमें IIM का कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, मेरे काम का कंट्रीब्यूशन ही रहा है. Yes, I am, वो उसमें जो मुझे एक्सपोजर दिया that was a different thing, but जब आप जॉब में हैं तो आपकी परफॉर्मेंस ही आपका सबसे बड़ा इंडिकेटर है. सो सबसे पहले ये चीज माइंड में होनी चाहिए कि हमें करना क्या है. जॉब्स करनी है तो हमें किस फील्ड में जॉब करनी है. और ये माइंड में मैंने जब मैं इंटरव्यूज कंडक्ट करता था तो बच्चों का सबसे पहले ये होता था कि टारगेट जॉब नहीं होनी चाहिए, टारगेट ना हो कोई भी. सो ये जो फियर ऑफ टारगेट अचीवमेंट है ना, ये बिल्कुल साइड पे रख के बात करिए क्योंकि टारगेट तो आपको ऑपरेशंस की जॉब में भी है. Whatever you will do when anybody else is going to pay you, he will make sure you give him at least 10x of what he is paying you. 10 गुना आपसे वो काम लेगा. सिंपल कैलकुलेशन है. सो अगर तो आप प्रिपेयर्ड हो इस चैलेंज को लेने के लिए तो उसमें ये अच्छा नहीं है कि हम खुद के लिए ही काम कर लें. 10 गुना ना करें तो 2 गुना ही कर लें. एक डिसेंट जॉब अभी भी इंडिया में अगर आप अपने शहर में हैं तो 15,000 रुपए की है. आप अच्छा काम कर रहे हो तो हो सकता है 20,000 मिल जाए. अगर मुझे जलंधर में ही रह के काम करना है तो मुझे 20,000 रुपए से स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी. अगर मैं एज ए प्रोफेशनल बात करूं तो 20,000 रुपए इज ए स्टार्टिंग गुड सैलरी इन ए ओन टाउन. अगर मैं मेरे घर में 20,000 रुपए मिल रहा है तो मेरी सैलरी अच्छी है. बट अगर मैं एक एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं तो 20,000 रुपए तो कुछ भी नहीं है. 20,000 रुपया तो आपकी एज के बच्चे काम के साथ साथ ही कमा लेते हैं. Few days back we were in DAV University.
डीवी यूनिवर्सिटी आपसे आप जैसे बच्चों से इंटरेक्शन कर रहा था, वहां पे 30 बच्चे ऐसे थे जो पढ़ भी रहे थे और काम भी कर रहे थे, और वो 30 वो थे जो 25,000 से ज्यादा अर्न कर रहे हैं पढ़ते पढ़ते ही, कुछ थे 50,000 से ज्यादा, और एक उनका एमबीए का स्टूडेंट था जो जिससे से कुछ 10 मिलियन की 10 इतने की फंडिंग भी उसने स्टार्टअप में रेज की थी। और मैं जहां जहां भी जाता हूं, किसी ना कहीं हमें वो लोग मिलते ही हैं जो काम के साथ साथ ही 20-25 हजार रुपया कमा रहे हैं। और एक ये भी डिफरेंस रहेगा कि जब वो बच्चा भी इंटरव्यू के लिए अपियर होगा और आप भी अपियर होंगे, he will always have an upper edge because उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, क्योंकि उसने प्रैक्टिकली फेस किया हुआ है मार्केट को। और एज ए एम्प्लॉयर भी, अगर मैं एज ए एम्प्लॉयर इंटरव्यू करूंगा तो मैं भी यही देखूंगा ना, ये नहीं है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, दैट अगेन मैटर्स कि आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, क्या बात करते हो, बट अल्टीमेटली एज ए इंटरव्यूअर मेरा ये फोकस होता है कि ये काम कर पाएगा कि नहीं। अगर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स में आपके माइंड में है कि मुझे जॉब ही करनी है, तो ये पेन डाउन कर लीजिए कि मुझे किस सेक्टर में काम करना है और क्यों। और अगर आप ये सोचते हैं कि हमें अपना काम करना है, उसमें आपका इंटरेस्ट क्या है, ये आइडेंटिफाई करिए कि आप क्या क्या काम कर सकते हो, कुछ भी हो, यानी समोसे बनाना भी हो। टेक्नोलॉजी ने इतना एडवांटेज दे दिया है हमें कि आप जलंधर में बैठ के यूएस में सुबह ही बिजनेस शुरू कर सकते हो, और इसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, सब कुछ अवेलेबल है। गवर्नमेंट इज ऑफरिंग सब्सिडीज ऑन द एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, आपके लिए सब्सिडीज अवेलेबल हैं, लोन्स अवेलेबल हैं, विदाउट कोलेटरल लोन्स अवेलेबल हैं, 10,000 से लेकर 100 करोड़ रुपए तक के लोन अवेलेबल हैं। ये तो है गवर्नमेंट की तरफ से। इफ यू हैव अ गुड बिजनेस आइडिया, तो आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है इंडिया में। शार्क टैंक देखते हैं आप, तो क्या उसका लर्निंग क्या है आपका शार्क टैंक देखने से? व्हाट यू लर्न फ्रॉम शार्क टैंक? आगे सिर्फ आप देखते ही हैं या सीखते भी हैं उससे? There is various business terminologies that we don't have heard anywhere. तो वो काफ़ी चीज़ें उनसे पता लगती है कि एक्चुअली बिजनेस में यूज़ क्या होता है एंड क्या टर्म्स है जिसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। और अपनी कंपनी को कैसे रिप्रेजेंट करना शार्क के सामने, हाउ टू रेज द फंड्स फॉर द कंपनी। इन सब चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि वो क्या आइडियाज लेके आते हैं। अगर ऐसे लोग सोच सकते हैं तो आप में और उनमें क्या डिफरेंस है? I met a boy from Jalandhar. He's 15 years old and he's CEO of his own company. और उसकी टर्नओवर 15 करोड़ रुपए की है। 15 साल का है। हमारे यहाँ पे एक फैमिली थी जलंधर में, अभी भी वो यहीं पे हैं। सो फादर, मदर, वन ब्रदर एंड वन सिस्टर। जलंधर की फैमिली थी। इज बिजनेस ऑफ आड़तीये थे वो लोग, फादर। सो उनकी दिस हैव सम हेल्थ इश्यूज। तो उनके बच्चों ने देखा कि जैसे हम बच्चे करते हैं कि आप ये खा के देख लो, आप ये खा के देख लो, मेडिकेशन में ये देख लो, ये देख लो, बट नथिंग वाज वर्किंग।
तो जो लड़की थी उसने पढ़ पढ़ के इधर से पढ़ लिया, उधर से सुन लिया, पढ़ लिया, शी स्टार्टेड मेकिंग वो चीजें अपने मदर के लिए खुद से बनानी शुरू कर दी उसने कि ये आप ये पी के देखो, अब आप ये पी के देखो, और हर मदर स्टार्टेड रिकवरिंग। उन दोनों बच्चों ने धीरे धीरे अपने रिलेटिव्स को देना शुरू किया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बना के आगे उन्होंने कुछ लोगों को देना शुरू किया। आज वो 100 करोड़ की कंपनी है, जलंधर बेस्ड, पलक नोट्स उनका नाम है। लड़की का नाम पलक था क्योंकि वो नोट करती थी कि मुझे क्या क्या चाहिए, कहां कहां से लूंगा, क्या है, कभी कहीं से पढ़ लिया, कहीं से पढ़ लिया। यंग बच्चे हैं, जलंधर से हैं, और आज उनकी कंपनी की वैल्यूएशन इज 100 करोड़। तो ये सारी हम ही में, आपको ये बताने का मेरा पर्पस ये है यार कि आप में से ही हैं, मैं भी आप जैसा ही हूं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मैं कौन सा टाटा से आया हूं। सो इस चीज में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके माइंड में क्लैरिटी होना सबसे ज्यादा जरूरी है कि मुझे करना क्या है, और करना क्या है, और हमें आगे आगे बताना है कि आपको क्या करना है। उसके आगे का सारा इकोसिस्टम है। अगर आपको जॉब में जाना है तो लोग, आपका कॉलेज इस चीज में आपको हेल्प कर देता है। अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है तब भी ये लोग हेल्प कर देंगे, उस सारा मैकेनिज्म अवेलेबल है उसके लिए। पूरा कंप्लीट इकोसिस्टम इज देयर इफ यू वांट टू गो फॉर अ जॉब, इफ यू वांट टू गो फॉर योर ओन वर्क। सो क्लैरिटी एंड पैशन, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता ना काम करने के लिए, ना अपना काम करने के लिए। जब मैं खुद प्राइवेट सेक्टर में काम भी करता था, आई वाज हेडिंग, मेरे पास 250-300 लोगों की टीम थी इंडिया में। सो जो मुझे डायरेक्टली रिपोर्ट करते थे उनको मैंने एक चीज बड़ी क्लैरिटी से कही हुई थी कि यार जिस दिन दिल करता है छुट्टी लेने का, तो मुझे सीधा बोल देना कि मुझे छुट्टी लेनी है। और मैं बहुत बार उनको बोलता ठीक है यार ना, तू छुट्टी भी मत लेना। उसका रीजन क्या है? अगर मैं वो बोले मुझे सर छुट्टी लेनी है, मैं नहीं काम कर, वो करेगा ही नहीं। सो उसको, और ये मेरा जो वे ऑफ माई वर्किंग, मेरी तभी मैं नंबर 1 था इंडिया में, बिकॉज मैं अकेला तो काम नहीं करता था, टीम वर्क था सारा। सो जब मैंने उनके टाइम पे बोल दिया ठीक है यार तू कर ले, फिर जब मेरी बारी आती थी कि आज ये नंबर से अचीव कर दें, तो इट वाज देयर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर मैं उनके साथ हूं तो वो भी मेरे साथ हैं। सो इन सब चीजों में कॉमन क्या है? क्लैरिटी, कि हमें करना क्या है। अगर छुट्टी करनी है तो छुट्टी करनी है, वो भी क्लियर है, और अगर काम करना है तो काम करना है, वो भी क्लियर है। सो अगर हम गवर्नमेंट इकोसिस्टम की बात करें कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10,000, आप 10,000 रुपया ले लो, 10 वापस कर दो, 20 ले लो, 20 वापस कर दो, 50 ले लो, 50 वापस कर दो, 1 लाख ले लो, 1 लाख वापस कर दो, 2 लाख ले लो, विदाउट एनी सिक्योरिटी। सो अगर किसी के पास ये है कि मुझे कोई काम है, ये आइडिया है, मैं काम कर सकता हूं, सो आइडिया वर्केबल है कि नहीं है वो शीशर बताएंगे, बट उस आइडिया के लिए पैसा कैसे आएगा वो मैं बता दूंगा। आप में से काम कितने लोग कर, अभी
अर्निंग किन किन लोगों की है? ऊपर कर यार हाथ। बस एक ही है? हाथ खड़ा करने में हेजिटेंट हो यार। अच्छा काम कर रहे हो आप, काम करके साथ साथ कमा भी रहे हो। आप क्या काम करते हैं? सर ट्यूशंस का। कितना अर्न कर लेते हैं? सर अभी तो दो बच्चे ही हैं इसीलिए 2। वेरी गुड, वेरी गुड। आप? I started a business. It's called thrift store. Around in 22 days, 2 months back, मैंने एक मतलब डिलीवरी बॉय का काम करना स्टार्ट किया था। मतलब 2 महीने किया, फिर मैं दिल्ली में टूर लगा के फिर आई लेफ्ट विद 6000 एंड मैंने 1500-2000 में कुछ थ्रिफ्ट कपड़े, थ्रिफ्ट का मतलब जो एक्सपोर्ट कपड़े होते हैं जो बाहर से आते हैं फॉरेन से इंडिया में, उसको मैंने लेना स्टार्ट किया। उसको मैं ऑनलाइन बेच रहा हूँ। वेरी गुड यार। कितना अर्न कर लेते हो? सर मतलब अभी 22 डेज ही हुए मुझे। मैंने जनवरी 21 में स्टार्ट किया था एंड आई कैन प्राउडली से मैंने 8+ स्टेट्स में कपड़े बेच दिए हैं और मतलब 8-9,000 रुपीज का। वेरी गुड यार, डिजर्व्स अ क्लैप। वेरी गुड। सो दिस इज हाउ द आइडिया कम्स ना कि ये अपॉर्चुनिटीज हैं और इसी बिजनेस को आप इस स्केल पे भी लेके जा सकते हो और 10 लाख रुपए भी महीना कमा सकते हो इसमें। सर जैसे कि मतलब शार्क टैंक में अब देखता हूँ ना, शार्क टैंक से मतलब मैंने ये सीखा कि मतलब पहले मैंने सोचा था कि इंस्टाग्राम में सेल करता हूँ, तो मैंने सोचा था कि इंस्टाग्राम में इंस्टाग्राम एड्स लाऊं, मतलब जिससे ज़्यादा मतलब व्यू ला सकूँ, ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन तक पहुँच सकूँ। तो मैंने शार्क टैंक से ये सीखा कि मतलब बाकी जो मतलब जैसे एंटरप्रेन्योर है, कुछ क्लोथिंग ब्रांड है जिनके, उन्होंने क्या किया कि जो फैशन इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, उनको मतलब कोलैब देना स्टार्ट किए। मतलब वो कपड़े पहनते हैं, मतलब कुछ छोटा सा चार्ज करना पड़ता है या फिर उनको फ्री में कुछ देना पड़ता है, वो फोटो डालते हैं, उनसे मतलब थोड़ा हमारा प्रॉफिट हो जाता है। वेरी गुड यार। जी सर, ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इन्फ्लुएंसर भी ढूंढते। वेरी गुड यार। आप सर? पोर्ट्रेट मेकिंग सर। क्या? पोर्ट्रेट बनाते हैं। वेरी गुड। तो कितनी देर से कर रहे हो? 2 साल हो गए, 2 दिन। कितना एवरेज अर्न कर लेते हो? ऑर्डर के हिसाब से होता है। एवरेज? एवरेज 1 पोर्ट्रेट फॉर 1000। कितना सेल कर लेते हो? अभी तक तो 20-30 है। वेरी गुड यार, गुड। तो आपको इसमें अगर इसको स्केल करना है तो कैसे करोगे? तो मतलब मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ जैसे, तो ऑर्डर्स आते हैं, तो जीमेल के थ्रू भी आते हैं कई ऑर्डर्स बीच में पोर्ट्रेट के लिए, और थ्रू फेसबुक। तो कौन सी क्लास में हो आप? बीकॉम सेकंड ईयर। आप कौन सी क्लास में हैं? BCA पैसे। वेरी गुड सर, ये तो बढ़िया बच्चे हैं। और कौन है, आप बताइए। सर ग्राफिक डिजाइनिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट। वेरी गुड। सो कौन सी क्लास में हो? सर BCA फर्स्ट। सो क्या अभी तक कितना काम किया है इसमें? सर अभी तक 4-5 साइट्स बना ली हैं और ग्राफिक डिजाइनिंग तो चलता रहता है। जैसे अभी एक आर्मी पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल की जो साइट पे पोस्ट वगैरह बनती हैं या फिर उनके भी सेमिनार लगते हैं, तो वो सब का सारा ही काम। Very good. तो क्या आप कितना आप अभी तक अर्न कर चुके हो उसमें? सर अभी अबाउट 60 to 70,000। वेरी गुड। ओके, आप अभी यहाँ से भी थे, आप थे? सर रिसेंटली मैंने शुरू किया था ट्यूशंस का ही, बट मैं ऑनलाइन लेक्चर्स भी देती हूँ। तो रिसेंटली मैंने 2 मंथ्स में मतलब फर्स्ट मंथ मतलब पर वीक मेरा वीक नहीं पर मंथ 4,000। वेरी गुड यार, वेरी गुड। तो लेक्चर किस चीज पे लेते हो आप? कॉमर्स स्टूडेंट्स को +1 +2 एंड फर्स्ट ईयर वालों को। ऑनलाइन? Yes, sir. तो आप खुद कौन सी क्लास में हो? मैं अभी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर। वेरी नाइस, गुड यार। तो अभी आप ये देखिए कि इनमें कोई फर्क है, आप में और इनमें? फर्क कुछ नहीं। सो फर्स्ट डिफरेंस तो यहीं से आ जाता है कि उनका माइंडसेट टुवर्ड्स देयर ओन वर्क।
अभी तो ये पढ़ाई के साथ साथ कर रहे हैं, अगर इसको वो फुल टाइम करने लग जाएंगे तो किसी भी बैंक की सैलरी से तो कहीं ज्यादा अपने आप ही कमा लेंगे. सर ये भी करती है बट शी इज नॉट स्टिकिंग. आई एम एक्चुअली डू वो पैप आर्ट्स एंड स्केचेस, तो मैं भी पोर्ट्रेट्स एंड स्केचेस बनाती हूँ. वेरी गुड है. तो यू हाउ यू सेल? ऑनलाइन भी और NFTs, तो उन सब के लिए निफ्ट्स वगैरह, और सुबह सुबह जिमिंग भी. सो यू आर ट्रेनर आल्सो. वेरी नाइस. मतलब मैं साइंस फील्ड से हूँ, तो उसके बाद मैंने अपनी फील्ड चेंज करी थी कॉमर्स से. तो जो मैंने सब्जेक्ट लिया था वो था फूड न्यूट्रिशन. तो उससे मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बन गया प्रोडक्ट्स को देखना, उनके आइटम्स वगैरह. तो उससे मैं वर्कआउट की फील्ड में आ गई. वैसे तो न्यूट्रिशन वाला काम भी बहुत बढ़िया है. बट सर मेरा उसके लिए कोई मतलब खास कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, और स्कोप आई डोंट थिंक सो उसमें नो स्कोप नो मेरे स्कोप लिए तो बहुत ज्यादा है उसमें. सर वो यहाँ पे नहीं है जलंधर में, क्योंकि एक ओपन ऑफर जो आपको मिलती है वो जिमिंग के लिए मिलती है, और जिमिंग के लिए मैं नहीं जाना चाहती. और अगर आपने न्यूट्रिशन के लिए स्पेशलाइज करना है उसके लिए आपको चाहिए मेडिकल, और मेरे पास बायो नहीं थी. ऐसा कुछ नहीं है यार. बायो के अंदर दिस इज नॉट रिक्वायर्ड मेडिकल फॉर न्यूट्रिशन. वो तब चाहिए अगर आपको एक प्रोफेशनलाइज्ड जॉब में जाना है. आपको पता है छोटे छोटे कोर्सेज बहुत लोग करवाते हैं. सर वो सब कर रहे हैं ना, तो लेट्स. हाँ, वहां पे क्या है जहां पे सब लोग कर रहे हैं. सो देयर कम्स योर ओन स्किल्स, हाउ यू कम आउट फ्रॉम द क्राउड. पर इसमें ऐसे भी लोग हैं जो एक कंसल्टेशन का ₹1,00,000 लेते हैं. 1 कंसल्टेशन 1,00,000 रुपए. और वो अगर आज मैं उनको बोलूं ना कि मुझे कल चाहिए, तो कल नहीं मिलेगी. वो 6 महीने का टाइम देते हैं. सर मैं डिप्लोमा कर रही हूँ साथ साथ में. हाँ. तो अभी तो फिलहाल कॉमर्स में ही है, बट मेरा क्योंकि बैकग्राउंड जो है वो सारा कॉमर्स में है, तो वहाँ पे मुझे सपोर्ट मिल रही है. बट मैं साथ साथ में डिप्लोमा कर रही हूँ. अगर मुझे कहीं पे स्कोप लगे कि मैं शुरू कर सकती हूँ तो मैं शुरू कर दूँ. या वेरी गुड यार, वेरी नाइस. और कितना अर्न करते हो आप? जिमिंग के लिए तो इट डिपेंड्स. अभी मेरे पास आते हैं 5 to 6 लोग आते हैं, एंड जुम्बा के लिए मेरे पास आते हैं 7. तो एवरेज कितना कमा लेते हो? अभी से काउंटिंग भूल गई. मतलब जैसे 2000 पर पर्सन 1 मंथ, और जुम्बा के लिए 1500. तो हो ही जाता है. कितना हो जाता है? इतना की शॉपिंग करके वेरी गुड यार, वेरी गुड. Her name is Hasi. सो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो अभी आप ले रहे हैं. सो इनको स्केल करने के लिए वेन एवर यू रिक्वायर्ड एनीथिंग, रादर इट्स मनी और इट्स स्किल ट्रेनिंग और एनीथिंग यू नीड, वी आर जस्ट अ स्टेप अवे फ्रॉम यू. पर वो आपको एक स्टेप लेके हमारे पास आना पड़ेगा. अगर सीरियसली लोग आप चाहें तो आई कैन ब्रिंग द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हियर हु कैन एक्चुअली गाइड यू कि आप ये फील्ड्स हैं, इसमें ये आपको पैसा मिलेगा, इतना आपको इस पे गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलेगी. दे कैन एनी डे कम. हम तो ले आएंगे, आप आओगे उनके पास? ये बताने में ही हेजिटेंट है कि मैं अपना काम करती हूं. यू शुड बी प्राउड कि हाँ हम तो अपना काम कर रहे हैं. अपना काम बुरी बात नहीं है. एक हमारे इस एरिया के एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल है. आपने सोनालिका का नाम सुना है? So, सोनालिका के क्रेडेंशियल्स क्या हैं? ट्रैक्टर्स तो है ही हैं. उनके क्रेडेंशियल्स ये हैं कि वो वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ट्रैक्टर्स हैं. वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट.
और इंडिया में वो नंबर 1 है एक्सपोर्टर. He owns almost 38-39% of market share in the exports. और उसका जो सेकंड नंबर पे है वो 18% पे है. And how they started? The chairman of the company, he retired from LIC. मतलब 58 में उन्होंने जॉब से रिटायर हुए थे. He was branch head with LIC. और जो उनके बेटे हैं अमृत सागर मित्तल, so he is now vice chairman of the company, and he started his career from United India as development officer, and now the empire is debt free. 5,000 crores they have a cash surplus and zero loan. So, अगर ये लोग कर सकते हैं, ये LIC के ब्रांच मैनेजर का बैकग्राउंड कैसा होगा? यू कैन वेल इमेजिन ना. वो तो थे ही नहीं कि उनके पास सरप्लस पैसा पड़ा था, चलो खोल लेते हैं. सो मित्तल सर ने एक दिन कहा, मुझे कहते कि मैं जब हम अपने काम में चल रहे थे तो वी थॉट कि हम मारुति की डीलरशिप ले लें. वेंट टू मारुति ने हमें डीलरशिप लेने से मना कर दिया. सो टुडे आई एम प्राउड टू से दैट आई हैव मोर डीलरशिप्स देन मारुति. सो मुझे ये आपको चीजें बताने का पर्पस ही सिर्फ ये है कि वो लोग भी यहीं से शुरू हुए हैं. जितने यहां पे बिलियनियर्स हैं इंडिया में, 90% आर फर्स्ट जनरेशन बिलियनियर्स. 90%. सिर्फ 10% है जो पीछे से अमीर हैं. सो बी क्लियर इन योर माइंड कि आपको करना क्या है, और जो करना है उसके लिए सबसे फ्रंट लाइन तो आपका कॉलेज ही है कि आप आके बताइए मुझे जॉब करनी है, या आई वॉन्ट टू गो फॉर अ जॉब बिकॉज आई वॉन्ट टू अटेन सम पर्टिकुलर स्किल्स. जॉब आपको स्किल तो सिखा देगा, पर मुझे फिर आगे जाके ये काम करना है. सो जो काम करना है उसके लिए सारा कैसे करना है, क्या करना है, कहां आपको क्या स्किल चाहिए, वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए. अगर आपके माइंड में नहीं भी है, इसके लिए सारा इकोसिस्टम है, सब लोग हैं आपको बताने के लिए. सिर्फ और सिर्फ आपका एक स्टेप चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है. एंड एवरी सिंगल फील्ड हैज अ मार्केट एंड अ स्कोप. आप कुछ पूछना चाहते हो? Please. So there is a term intrapreneurship and entrepreneurship. Difference मुझे पूछना था, इसमें होता क्या है? ये तो बैठने में से सर बताएंगे. Okay. Any other? Yes, students, please ask any question. Nobody?
या तो सारा समय लग गया है तो या कुछ भी नहीं लगा। हेजिटेंट ज्यादा होते हैं Hesitant ज्यादा। यार जब आप बोलना शुरू करो, यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी फाइनेंशियल मैटर्स या कुछ आपको लगता है, आई नो कि एवरी स्टूडेंट हैज सेट ऑफ माइंड कि मैं फाइनेंस वो सब बता तो रहे हैं, इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क हिम। पैसा तो बहुत आगे की स्टेज जाके है हाँ कि पैसा चाहिए होगा। आई थिंक इन फ्यूचर वो पक्का ही आएंगे। So, कभी भी इन चीजों पे कुछ भी चाहिए हो, यू कैन आस्क योर मैम, हम तो हैं ही हैं, यही के तो हैं। सो देयर इज अ कंप्लीट इकोसिस्टम टू सपोर्ट यू। आप अभी भी अपने फोन पे सर्च करके देखिए, यू विल हैव 100 पॉलिसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि जिसमें आपको इस चीज के लिए पैसा मिलेगा, इस चीज के लिए पैसा मिल जाएगा, इस चीज के लिए पैसा मिल जाएगा। इवन इफ यू वांट टू स्टार्ट अ डाइट क्लिनिक, यू विल गेट अ मनी। सो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं और ये बेस्ट टाइम है। इस समय इंडिया में काम करने का बेस्ट एवर टाइम है। सो आप भी बन सकते हो फर्स्ट जनरेशन बिलियनियर, ना सही मल्टी मिलियनियर तो बन ही जाओ। और इंडिया का एक इकोसिस्टम, इकोनॉमी दिस गिविंग यू अपॉर्चुनिटी। फाइन, so all the best. Thank you. Thank you, sir. I hope everybody will grab their opportunities of life with passion and hard work. Yes. So, sir, okay. I request Dr. Ashish to please come on the dais and give you more knowledge about entrepreneurship skills, behavior. ओके, माइक की जरूरत नहीं है। Am I audible at the back? तुम लोग पूरे गधे हो। तुम्हारे पास जो है ना वो बंदा आया है और वो तुम्हारे साथ वो बातें शेयर कर रहा है जो कोई नहीं शेयर करता, ठीक है ना। पर मे बी तुम्हारे पास अभी क्वेश्चन नहीं है और ये मेरी रिकॉर्डिंग करनी बड़ी अच्छी है, मैं तो मूव करता रहूँगा। जो मानव सर यहाँ बैठे हैं तो हम दोनों जो है वो एक ही एज ग्रुप के हैं। ही लुक्स मच यंगर विद ऑल्दो बिकॉज़ ही इज वेरी स्मार्ट आल्सो। तो हमें हमारे कॉलेज में जब लेक्चर होते थे ना तो टीचर जो आता था बीकॉम में स्पेशली, है ना, तो वो आगे लेक्चर देता था। वो ये कहता था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, है ना, या ज़्यादा से ज़्यादा कोई आ गया तो कंपनी लॉ के नई प्रोविजंस पढ़ा गया, दैट्स इट। But now you people are so lucky that you are having people coming at your doorstep and they are actually pushing you like this. जाग जाओ। तुम दोनों को मैं देख रहा, तुम दोनों क्या कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। पर प्रॉब्लम कहाँ पे है कि हम जागने को तैयार नहीं, क्योंकि हमने तो माइंड में सोचा हुआ है कि हम तो नहीं जागने वाले। क्यों नहीं जागने वाले? क्योंकि हमारे को जो है वो ये चीज़ें पढ़ाई गई हैं। बिजनेस तो तभी शुरू होता है जब बहुत सारा पैसा हो। बिजनेस तो तभी शुरू होता है जब आप 30, 35, 40 साल के, या सिद्धार्थ सर की तरह जैसे भी, ठीक है जी, एक लेवल पे पहुंच गए, अब जो बिजनेस है तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो है ना कि हम बिजनेस इसलिए नहीं स्टार्ट करते कि हमारे दिमाग में हमने बॉटल नेक्स लगा रखे हैं। ये ना प्रॉब्लम है हमारी यूथ की सबसे ज्यादा है। जब हम इस एज ग्रुप में होते हैं ना स्पेसिफिकली, ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जब 13-14 साल के हम होते हैं। क्यों सर? बच्चे इसी एज ग्रुप के हैं ना आजकल हमारे, है ना।
तो जैसे ही वो टीनेजर होते हैं तो आधी बात तो वो सुनना ही बंद कर देते हैं। उनको लगता है कि हमारे माँ बाप से बेवकूफ़ तो दुनिया में कोई है ही नहीं। ठीक है, हमारे टीचरों की नॉलेज तो जो है वो बहुत पुरानी है, उनको तो आता ही कुछ नहीं है। भी दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई, ये वहीं के वहीं है। ठीक है ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। तो आज का भी जो लेक्चर है ना, जो पूरी सर ने बड़ा अच्छा उसका वो नाम रखा है, दैट इज दैट द प्रॉब्लम इज दैट वी डू नॉट हैव अ एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। माइंडसेट ही नहीं है। यहाँ पे वो लगा हुआ है बोटल क्या कहेंगे उसको, बोटल नेक्स कह लो या ब्लॉक्स लगे, बैरियर्स लगे हुए। ठीक है ना, ब्लॉक्स किस तरीके के लगे हुए, बहुत सारे ब्लॉक्स है। इट इज नॉट ओनली अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहले तो हमें ये लगता है कि जो पहली सर ने बात कही कि आईएम्स में क्या है, आईएम्स में क्या है, व्हाट इज सो डिफरेंट ओवर देयर, कि जो है वो डीएवी कॉलेज में नहीं है। सर ने पहले लीक कर दिया आंसर। हमें पता है, हमें सब कुछ पता है एग्जैक्टली, बट एक्चुअली हम सुनने को तैयार नहीं है। और हम ना वो कंटेक्स्ट नहीं बना पाते जो कंटेक्स्ट चाहिए उस चीज को समझने के लिए। तो सर भी आईएम्स गए हैं, मैं भी आईएम्स गया, मैं आईएम बेंगलोर गया हूँ, 3-4 बार वर्कशॉप लगा के आया हूँ वहाँ पे। तो बड़ी कोशिश करी, बच्चों को ऐसे पकड़ा, खड़ा किया, खड़ा हो गया यार, हाथ मुंह ऐसे करके देखे, पीछे घुमा के देखा, मैं क्या शायद चार्ट आगे हो, भी कुछ ऐसा हो डिफरेंट कि भी पता नहीं इसकी शायद शरीर की बनावट ही कुछ और हो कि क्यों इसको 65 लाख रुपए का पैकेज मिल जाता है और मैं 6.5 के पीछे भागता रहता हूँ। क्या है ऐसा वहां पे? तो सर ने जो बात कही माइंडसेट, रात को 3 बजे कॉफी शॉप में, अंदर ही है कॉफी शॉप, तो हमें भी असाइनमेंट दे दी उन्होंने। हम एफडीपी लगाने गए सर, वो हमें भी असाइनमेंट देते हैं कि लो बेटा तुम भी पढ़ो, और केस स्टडी होती है 30 पेजों की, और वो कहते हैं कि ये सवेरे जो है ना केस तुमने आके क्लास में प्रेजेंट करना है। तो और ऑप्शन है ही नहीं, वही साइड बैठ के पढ़ोगे। तो रात को 3 बजे हम भी गए, चलो कॉफी पीने चलते हैं। पूछा किसी से, कहता हाँ जी एक कॉफी शॉप खुली होती है, वैसे रात को 2:30 बजे बंद होती है, एक जो है 24/7 है। तो हम वहाँ चले गए, वहाँ जाके देखा, वहाँ जाके ऐसे लगा जैसे डीएवी कॉलेज की कैंटीन भरा पड़ा है, बच्चे बड़े बड़े यहाँ पे, और सारे लैपटॉप पे लगे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। दैट इज एक्चुअली द डिफरेंस। जब आपको पता है ना कि आपने 65 lakhs का पैकेज लेना है और मैंने सक्सेस अचीव करनी है क्योंकि मैं 30 लाख रुपए फीस दे के आया हूँ, तो अपने आप पूंछ में हनुमान की तरह आग लग जाती है। सिंपल सी बात है। जब ये दिमाग में माइंड सेट हो भी ठीक है यार, माँ बाप ने बीकॉम में डाल दिया है, बीकॉम करनी है, उसके बाद फिर एमबीए भी करनी है या एमकॉम करनी है, फिर उसके बाद सोचेंगे हाँ भी अब करियर का क्या करना है। एमबीए में हो सकता है चलो नौकरी भी लग जाएगी, एमकॉम में भी नौकरी लग जाएगी, बट नाउ दिस हैज टू चेंज एक्चुअली। और जो सर बातें कर रहे थे ना, वो उसी चीज के ऊपर ही रिफ्लेक्शन है कि अब चेंज के लिए तुम्हें एमबीए या एमकॉम करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है। मार्क ज़करबर्ग का नाम सुना है? ही इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक और मेटा। ठीक है ना, मतलब इतनी पॉपुलेशन इंडिया के बाद चाइना, और चाइना के बाद जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है वो मेरे ख्याल में वो भी क्रॉस कर चुकी होगी, वो मेटा की है। इतने यूजर्स हैं वहाँ पे। तो पीछे वो बता रहा था, ही हैड शेयर्ड सम फिगर्स, अप्रॉक्सीमेटली 2 बिलियन एवरेज यूजर्स आर देयर। अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप को तीनों को इकट्ठा कर दो तो 2 से 2.5 बिलियन यूजर्स है मेटा के पास। कैन यू इमेजिन? एंड ही वाज अ एमबीए ग्रेजुएट पास ड्रॉप आउट। सिमिलरली स्टीव जॉब्स। चलो ये तो बड़े वो नाम हो गए ना, बड़े बड़े नाम है, ठीक है ना। ब्रिज मोहन लाल मुंजाल का नाम सुना है? प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है कि तुमने ब्रिज मोहन लाल मुंजाल का नाम नहीं सुना। जबकि अगर मैं ये पूछूंगा कि हाँ मुकेश अंबानी के कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, वो लास्ट वाला कोने वाला वो कहेगा मेरे से नहीं ना पूछा, पर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कितने बच्चे हैं उसके। अरे पता है सारी दुनिया को। कितने बच्चे हैं? 3। 1 बेटी, 2 बेटे, नाम भी बता दोगे तुम तो, है ना। प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो रही है क्योंकि हमारे पास रोल मॉडल नहीं है। हम तो देख रहे हैं अंबानी और अडानी की तरफ, और वो दोनों गुजराती हैं हम पंजाबी हैं। तो जब मैंने कहा ब्रिज मोहन लाल मुंजाल, तो किसी ने नहीं कहा कि सर वो तो हीरो ग्रुप का फाउंडर था, और वो
पंजाब की सबसे बड़ी कंपनी है आज की डेट में, आज भी सबसे बड़ी कंपनी है। जैसे सोनालिका का सर ने नाम लिया प्राउडली, सिमिलरली मुंजाज आर आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल फैमिलीज इन पंजाब। पर हमारे पास रोल मॉडल नहीं है, हम रोल मॉडल ढूंढते हैं वो दूर वाला स्टीव जॉब्स जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी